إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. तमाम किस्म की तारीफ व तौसीफ हम्दो सना किबरियाई व बड़ाई उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक व ज़ैबा है जिसने हम तमाम को पैदा फरमाया, जो हम सब का माबूद और हकीकी मसजूद और सच्चा पालनहार है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बादहु अनगिन तो बेशुमार दरूद व सलाम नाज़िल हो अल्लाह के तमाम नबियों और रसूलों पर, खुसूसन हमारे और आपके आखिरी नबी इमाम कायनात सरवर कौनैन मुहसिन इंसानियत ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके आल पर, आपके असहाब पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। हाज़िरीन जुमा, इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, ये मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और
اس ماہ محرم کے جس طرح کئی ایک فضائل ہیں، ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو اس محرم کے مہینے کی حرمت اور ادب کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ وہیں مسلمانوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین نے بہت سی قوموں کو پیدا کیا۔ ان ساری قوموں کے وجود اور ان کی شرارتوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کہیں صراحتاً کہیں اشارتاً کیا، لیکن روئے زمین پر سب سے افضل قوم، روئے زمین پر سب سے پاکیزہ لوگ، روئے زمین پر سب سے محترم بالشان لوگ، روئے زمین پر سب سے پاکیزہ اور مطہر لوگ جو روئے زمین پر گزرے، جس سے پہلے بھی اس دنیا کے اندر اس جیسا کوئی نہیں اور ان کے بعد بھی اس دنیا میں اس جیسا کوئی نہیں، وہ صحابہ کرام کی پاک باز ہستیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر صحابہ کرام کے متعدد فضائل و مناقب بیان کیے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں صرف ایک صحابی رسول کے مناقب اور فضائل کو بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مناقب اور فضائل۔ حضرات، حالیہ دنوں کے اندر ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، ٹیسٹ کی شکلوں میں، عبارت کی شکلوں میں اور ویڈیو اور آڈیو کی شکلوں میں ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو تقدس ہیں اور ان کا جو احترام ہے، ان کے احترام اور ان کے تقدس کی پامالی پر بھی لوگ اتر آئے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کیا جائے اور حقائق کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ اس لیے کہ اہل سنہ والجماع کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کے فضائل اور ان کے مناقب یہ مسلم امر ہے، نہ ہم کسی صحابی کے فضائل و مناقب میں طعن و تشنیع کرتے ہیں اور نہ ہی شیعہ کی طرح ہم تبرہ بازی کرتے ہیں، بلکہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حبہم دین و ایمان و احسان، کہ صحابہ کرام سے محبت اور انہیں اچھے الفاظ سے یاد کرنا یہ دین بھی ہے، یہ ایمان بھی ہے، یہ احسان بھی ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے تعلق سے توہین آمیز کلمات کہنا، ان کی شان میں توہین اور تقصیر کرنا اور آڑے ہاتھوں ان کو ہدف اور نشانہ بنانا، یہ کہا انہوں نے بغضہم کفر و نفاق و طغیان، کہ ان سے نفرت کا اظہار کرنا یہ نفاق بھی ہے، یہ کفر بھی ہے اور سرکشی بھی ہے۔ لہذا ایک انسان اور ایک مومن ہونے کے ناطے ظاہر سی بات ہے جو قربانیاں صحابہ کرام نے پیش کی ہیں، چاہے وہ مالی قربانیاں ہوں، چاہے وہ جان کی قربانی ہو، جو نذرانہ انہوں نے پیش کیا ہے دین کی خاطر، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، ظاہر سی بات ہے ان کے بعد اس جیسا کوئی اور نہیں کر سکتے ہیں اور نہیں کیے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کے لیے ضروری ہے
کہ ہم ان سب کے لیے رفع درجات کی دعا کریں، جیسا کہ سورہ حشر میں اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو حکم دیا ہے۔ یہ میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج اس روئے زمین پر جہاں کئی فرقے وجود میں آئے ہیں، چاہے وہ مجھے نام لینا مناسب نہیں ہے، آپ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں، اور سمجھ جائیے جس طریقے سے شیعوں کا طریقہ ہے کہ وہ لوگ خلفاء راشدین اور اجلہ صحابہ اور صحابیات پر وہ نقد کرتے ہیں اور وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم آل بیت کی محبت میں ایسا کچھ کر رہے ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین جو رشتہ دار ہیں ان لوگوں کی محبت میں ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، اور یہی ہمارا دین ہے اور یہی ایمان ہے۔ اسی نقش قدم پہ آج مسلمانوں کا بھی ایک گروہ، تصوف کا بھی ایک گروہ، روشن خیال لوگوں کا بھی ایک گروہ اسی نہج پر اور اسی راستے پر ہے، جو کہ افسوس کی بات ہے اور افسوس کا مقام ہے۔ اس لیے دیکھیے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا قرآن مقدس کے اندر، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہ میرے حبیب آپ دنیا کے لوگوں کو یہ بات بتلا دیجئے کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری تعریفات کا تنہا مستحق ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہو، سلام نازل ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو انہوں نے چن لیا۔ امام المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جن کو اللہ نے چن لیا، یہاں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مراد ہیں۔ ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر بھی اور اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندوں پر بھی۔ اور اسی طریقے سے حضرت امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کی شرح میں لکھا کہ الذین اجتباہم لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعلہم اصحابہ ووزراءہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے، اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو چن لیا اور ان کو آپ کا ساتھی اور آپ کا مددگار اور وزیر بنا دیا۔ تاہم دوسرے مفسرین نے یہ کہا کہ اس سے رسول بھی خود مراد ہے، تو رسول بھی اور اصحاب رسول بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ اب ظاہر سے بات ہو، جو اللہ کا چنندہ ہو، جو اللہ کا منتخب کردہ ہو، کیا بعد والوں کو ان کی شان میں گستاخی کرنا یا ان کی مناقب و فضائل میں یہ نقد کرنا روا ہے؟ بالکل نہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کے بارے میں تو فرمایا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، کہ وہ صحابہ جو مہاجرین میں سے ہیں اور انصار میں سے ہیں جنہوں نے پہلے پہر اسلام قبول کیا، والذین اتبعوهم بإحسان، اور بعد میں آنے والے وہ لوگ بھی جو ان دونوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم، اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان سب سے راضی ہو گئے ہیں، ورضوا عنہ، اور وہ لوگ بھی اللہ رب العالمین سے راضی ہیں، اعد لہم جنات تجری، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے نعمتوں بھری جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ جنت کو ان لوگوں کے اللہ نے بنایا ہے جن کے نیچے نہریں روا دوا ہیں، جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، تو یہ عظیم کامیابی ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ صحابہ اور یہ خاص طور سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جن کے بڑے فضائل اور جن کے بڑے مناقب ہیں۔ دیکھیے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ معاویہ، ابو سفیان کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے، ابو سفیان جب اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے
तो ये मुसलमान के बड़े मुखालिफ थे, इस्लाम के बड़े मुखालिफ थे। हर मुमकिन इन्होंने ये चाहा कि इस्लाम मिट जाए, इस्लाम खत्म हो जाए, और ये उस वक्त के जर्नेल भी, कर्नेल भी, बहादुर भी, कमांडर भी। लेकिन जब सन 8 हिजरी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का अता कर दिया और फातेह की हैसियत से मक्का के अंदर दाखिल हुए, तो रवायतों के अंदर आता है कि मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु ये पहले ही चुपके से इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन अपने बाप के सामने इस्लाम का इजहार नहीं कर पाते थे। जब इनके हजरत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु के वालिद यानी अबू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु जब इस्लाम कबूल करते हैं सन 8 हिजरी के अंदर, चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौके से चंद लोगों का नाम लिए थे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो लोग अगर मिल जाएं तो हरम के अंदर भी अगर वो पनाह लिए हों तो वहां भी उनको माफ न किया जाए, जिनमें से आप रज़ियल्लाहु अन्हु का भी एक नाम था। लेकिन हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पे आपको अमान दे दी गई थी और हजरत इकरमा तो वहां से भाग निकले थे, उस वक्त मुसलमान नहीं हुए। उस मौके से जब ये मुसलमान बन गए और उनके साथ पूरा घराना इस्लाम में दाखिल हो गया, तो हजरत मुआविया बिन अबू सुफियान, ये हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, इनकी विलादत देखिए मक्का हिजरत से 15 साल पहले होती है। हिजरत से 15 साल पहले आपकी विलादत मक्का में होती है और वफात जो है सन 60 हिजरी के अंदर दिमश्क के अंदर होती है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ये छठे खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, यानी चारों खलीफा के बाद हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ दिन के लिए खलीफा मुतय्यन हुए, 5वें खलीफा हजरत हसन। छठे खलीफा के तौर पर हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनकी हुकूमत में इस्लाम बहुत ज्यादा फला और बहुत ज्यादा फैला, इस्लाम को खूब सुरखरुई मिली, वो हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की दौरे हुकूमत में। आप रज़ियल्लाहु अन्हु के फजाइल के लिए सिर्फ यही बात काफी है कि आप शरफ सहाबियत से मुशर्रफ हैं। इससे बढ़कर रूए जमीन पर और कोई सआदत की चीज नहीं है एक मोमिन होने के नाते। सहाबी किसे कहते हैं? मन लक़िय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व माता अलल इस्लाम। सहाबी वो हैं जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान की हालत में मुलाकात किया हो और उसी पर तादम हयात वो बाकी रहा हो। मालूम ये हुआ कि कोई आदमी रसूलुल्लाह के पास जाकर ईमान कबूल करे, इस्लाम ले आए, फिर लेकिन वो इस्लाम से बरगश्ता हो जाए, तो फिर वो सहाबी भी नहीं है, वो मोमिन भी नहीं है। लेकिन सहाबी जो वो सहाबी हैं जब इस्लाम कबूल करते हैं तो देखिए इनको क्या मकाम और मर्तबा मिला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको एक मर्तबा दुआएं दी। दुआ पाने वाले सहाबी सहाबी बने, सरफ सहाबियत से मुशर्रफ हुए, एक फजीलत हो गई। दूसरी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। आपने क्या दुआ फरमाई थी? आपने दुआ फरमाई थी अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिसाब वक़िही अल अज़ाब, कि अल्लाह तू मुआविया को हिसाब व किताब का इल्म अता फरमा दे और इन्हें तू अजाब से बचा ले। और क्या चाहिए इंसान को? हम दुनिया में मेहनतें कर रहे हैं, दुनिया में इबादतें कर रहे हैं, हम माली इबादतें, बदनी इबादतें सब कुछ कर रहे हैं। मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा हासिल हो जाए, हम अजाब व खुरवी अजाब से बच जाएं। ये वो सहाबी रसूल हैं जिनके बारे में इमामुल अंबिया सरवरे कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह इन्हें हिसाब व किताब का इल्म अता फरमा दे और इन्हें अजाब से बचा ले। दूसरी दुआ देते हैं अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया वहदी बिही, अल्लाह तू इसे हिदायत हादी बना दे, हिदायत देने वाला बना दे, यानी इसके जरिए लोग हिदायत पाएं। अल्लाह इसे खुद हिदायत याफ्ता कर दे, वहदी बिही, और इसके जरिए तू दूसरे लोगों को भी रास्ते पर लगा दे। कितनी बड़ी सआदत की बात है। इसीलिए कहा अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि लोगों, अगर तुम किसी शख्स की इत्तिबा और तकलीद करना चाहते हो, मन काना मुस्तन्नन फलयस्तन्न बिमन कद मात मिन असहाबी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों, अगर तुम किसी शख्स की इत्तिबा करना चाहते हो, किसी की पैरवी करना चाहते हो, तो उन लोगों की करो जो असहाबे मोहम्मद में अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, अल्लाह के पास पहुंच गए हैं। गोया के सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलना,
उनकी पैरवी करना और उनके इज्तिहाद और उनके तरीके को फॉलो करना, ये ऐन सवाब है और ये जन्नत का रास्ता है। ये सहाबी रसूल के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं दी, और यही नहीं बल्कि आप कातिबीन वही में से एक हैं, आप लिखना पढ़ना जानते थे। सहाबी रसूल होने के बाद आपके वालिद ने यानी हजरत सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर के उन्होंने 3 बातें रखी थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल मैं 3 चीजें आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं, आपसे मैं दरखास्त करता हूं 3 चीजों की। उनमें से एक चीज क्या थी? कात इंदी अहसनुल अरबी वाजमलुहु उम्मु हबीबा, का मेरे पास अरब की सबसे हसीन और सबसे जमील खातून में से एक खातून है, मेरी बेटी उम्मे हबीबा, मैं उसे आपकी ज़ौजियत में देना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं कबूल करता हूँ। सुभान अल्लाह। जिंदगी में अगर शादी देखना हो तो सहाबा और रसूलुल्लाह की सीरत से देखिए। हमने और आपने क्या कुछ रस्मों बना करके, क्या कुछ रिवाज बना करके कितनी मुश्किलें कर रखी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हो रही है और कौन? उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या बन रही हैं? दुल्हन बन रही है। कह रही है कि अल्लाह के रसूल मैं आपको अरब की हसीन और जमील खवातीन में से एक खातून मेरी बेटी है, मैं उसे आपकी ज़ौजियत में देना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं काला नाम, हाँ ठीक है, दुरुस्त है, मैं कबूल करता हूँ, बात खत्म हो गई। कहता अल्लाह के रसूल दूसरी बात यह है कि मुआविया को आप अपने पास रख लीजिए, मुआविया को आप अपनी सोबत में ले लीजिए, आप अपनी तरबियत में उनकी तरबियत कर दीजिए, वो बेहतर इंसान बन जाए, और उसे कातिबीन वही में शुमार कर लीजिए, वो लिखना पढ़ना जानते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक से इरशाद होते हैं काला नाम, हाँ मैं तुम्हारी ये बात भी मान लेता हूँ। तीसरी बात उनकी देखिए, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि मुझे आप किसी मुहिम का चीफ और कमांडर बना दीजिए, इसलिए कि मेरे पास जो सलाहियतें हैं, मेरे पास जो तदबीरें हैं, मेरे पास जो महारत है, जो मैंने आज से पहले इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल किया है, अल्लाह के रसूल मैंने आपके खिलाफ जो चीजें इस्तेमाल की हैं, मैं उन सारी सलाहियतों को इस्लाम के लिए फरोग देना चाहता हूं, और मेरी मर्जी यह है ताकि ये बराबर का बदला हो जाए। मैंने इस्लाम को और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की जितनी जिद्दोजहद और कोशिशें की है, मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी जब तक बाकी रहे मैं इस्लाम को फैलाने के लिए वो सारी चीजें करता रहूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं तुझे ये भी चीज अता कर देता हूं। क्यों? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई आदमी उसी चीज का मुतालबा करते जो उसका अहला होता, तो अल्लाह के रसूल कभी महरूम नहीं करते थे, जरूर वो चीज दे देते थे। तुझे 3 चीजें आपको मिली, आप कातिबीन वही में से हो गए। इसी तरीके से देखिए यहाँ ये मोमिनों के मामू हजरत अमीर मुआविया को क्या कह सकते हैं? तमाम मोमिनीन के मामू हैं। अल्लाह, जाहिर सी बात है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आपकी बहन है, तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं इमामुल अंबिया पूरे मोमिनीन के क्या हैं? बाप की हैसियत से हैं। इमामुल अंबिया पूरे मोमिनीन के क्या हैं? बाप की हैसियत से हैं। उम्मे हबीबा माँ की हैसियत से हैं, तो भाई कौन हुए? मामू ही हुए। तो ये मामू हैं, इसलिए तो इस सिलसिले में आप देखेंगे रिवायतों के अंदर जिक्र है कि एक सहाबी रसूल से ये पूछा गया कि क्या ये मुआविया को रज़ी अल्लाह अन्हु को मामू, मोमिनों के मामू कह सकते हैं? तो उन्होंने कहा इसमें शुबहा क्या है, इसमें शुबहा क्या है कि उनको मोमिनों के मामू ना कहा जाए, जबकि उनकी बहन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मुबारका हैं। तो इससे ये इनकी चौथी फजीलत है। 5वीं फजीलत ये है कि देखिए इस्लाम के 6ठे अमीरुल मोमिनीन हैं। खुलफाए राशिदीन के बाद हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु थोड़े दिन के लिए खलीफा बने। उसके बाद जो है पूरा जो इस्लाम आप देखेंगे रूम, फारस और वो अफ्रीका के सहराओं तक जिनकी दौरे हुकूमत में इस्लाम फैला, वो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद। तो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की बड़ी कुर्बानियां हैं और उनकी इस कदर फजाइल हैं
कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाक़िब में ये शर्फ हासिल है कि आपको जन्नत की बशारत एक तरह से दी गई है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु को मग़फ़ूर के दर्जे में शुमार किया गया है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत उम्मे हराम बिनते मिल्हान रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ून अल-बहर क़द औजबू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे पहले जो लोग बहरी जंग लड़ेंगे, यानी समुंदर क्रॉस करके लोग लड़ाई लड़ेंगे इस्लाम की खातिर, उनके लिए जन्नत वाजिब है। वो साहबिया कहती हैं कि अल्लाह के रसूल से मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल क्या मैं भी उनमें से रहूंगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तुम भी उनमें से रहोगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर आपने फरमाया कि अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ून मदीनत कैसर, जो कैसर और किसरा आप लोग जानते हैं, रूम और फारस, कहा कि जो सबसे पहले मेरी उम्मत के लोग उन पर चढ़ाई करेंगे, मग़फ़ूरुन लहुम, उन्हें बख्श दिया जाएगा। उनके किए धरे से कुछ उनका हिसाब ही नहीं, बस उन्होंने वो काम किया, अल्लाह ताला ने उनको माफ किया। ये कितनी बड़ी सआदत की बात है। मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने इस बात को लिखा है कि सबसे पहली बार अव्वल जैश के अमीर जो थे, सबसे पहले जिन्होंने समुंदर क्रॉस करके जिन्होंने लड़ाई लड़ी, और उसके अमीर जो मुतय्यन थे हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु थे। ये कौन थे? मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत यजीद रहमहुल्लाह, जिनको आपने अपने बाद खलीफा नामजद किया। तो यही वो चीज है जिसकी वजह से आज मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु को लोग मतलूम करते हैं, लोग ताना देते हैं, लोग तरह तरह की हर्जा सराई करते हैं, लोग आपके मनाक़िब और फजाइल पर भी जबान दराजी करते हैं। मेरे भाइयों, ये ईमान जाय करने का सौदा है, ये ईमान को अकारत करने का सौदा है। इसलिए हर इंसान को चाहिए, हर मोमिन को चाहिए, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, सहाबा कराम का नाम लें तो एहतराम के साथ नाम लें, उनके लिए रफ़े दर्जात की दुआएं करें, उनका जिक्र करें तो जिक्र खैर करें। लेकिन कोई आदमी अगर उनके खिलाफ जबान दराजी करे तो हर मोमिन के ऊपर ये जरूरी है कि उनका दिफा करें और हक बात को सामने रखें। इसी तरीके से आप मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के फजाइल में जहां बहुत सारी बातें हैं, उनमें से एक बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत भी करते थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत करते थे, जिस तरीके से रिवायतों के अंदर आता है कि हसन और हुसैन से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत करते थे। जाहिर सी बात है, जो मोमिन होगा उसके दिल में हसन और हुसैन की मोहब्बत होगी। ये ईमान के अहम मिसदाक है, ईमान की बात है कि एक इंसान के दिल में हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की मोहब्बत हो। वहीं एक मोमिन के अंदर यह होनी चाहिए, तमाम सहाबा कराम के ताल्लुक से उनके दिलों में उसी तरह कद्र और मोहब्बत की बात हो। ऐसा नहीं है कि किसी को आप बुरा कहें और किसी को आप अच्छा जानें, किसी की मोहब्बत में गुलू करें और किसी की मोहब्बत को आप हल्के से ले लें, ऐसा नहीं है। बल्कि अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, तमाम सहाबा आदिल हैं, तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो से उनसे राजी हो गए हैं। तो हमको और आपको भी बनता है, हमको और आपके ऊपर भी यह हक बनता है कि हम उन सहाबा का एहतराम करें और उनकी तौकीर करें, उनका नाम लें तो जिक्र खैर के साथ उनका नाम लें, और जब भी कोई सहाबा के शान में गुस्ताखी करे तो हत्तल मक़दूर अपनी ताकत के बक़दर जो है उनकी दिफा करें। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा हम लोग खेल रहे थे और अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तशरीफ लाए। लाने के बाद जो है मुझे अल्लाह के रसूल ने पीछे से पकड़ लिया। देखते हैं मिजाज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से भी किस तरह घुल मिल जाते थे। इससे मालूम यह होता है कि इंसान बच्चों को ना डराए, ना अपनी शख्सियत से, ना अपने जाहो मनसब से, ना किसी और चीज से, बल्कि बच्चों से उल्फत और मोहब्बत होनी चाहिए। ये प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। कहते हैं कि पीछे से उनको पकड़ लिया और उसके बाद जो है मुझे कहा कि जाओ मुआविया को बुला लाओ। क्या कहा? जाओ उनको बुला लाओ। तो ये कहते हैं कि मैं गया, लेकिन देखा कि हुआ याकुल, वो खाना खा रहे थे। मैं वापस आ गया
फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा भेजा तो फिर कहा कि वो अभी खाना खा रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद में फिर गया तो देखा अब भी वो खाना खा रहे हैं। अल्लाह अकबर। कुछ लोग जो है देर तक खाना खाते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से है कि खाने को चबा चबा कर खाया जाए ताकि बदहजमी का आदमी शिकार ना हो, और 3 उंगलियों से छोटे छोटे लुकमे के साथ खाया जाए। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु खाना खा रहे हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तीसरी बार देखा कि वो खाना ही खा रहे हैं अभी तक, तो आपने फरमाया ला अशबह अल्लाहु बतना, कि अल्लाह ताला उसके पेट को आसूदा ना करे। हमारे यहाँ ये तर्जमा यही होगा, ला अशबह अल्लाहु बतना, कि अल्लाह ताला अल्लाह करे उसका पेट ही ना भरे, ये मतलब हुआ। तो इसका मतलब बद्दुआ नहीं है, ये इसका मतलब बद्दुआ नहीं है, बल्कि अरब के मुहावरे में ऐसा होता है कि किसी चीज में उजलत हो रही हो, जल्दी ताखिर हो रही हो, और आदमी किसी चीज में मुस्तगरक हो, तो ऐसा कलिमात लोग कह करके एक तरीके से मतलब वो अच्छा शुगुन लिया जाता था उस मुहावरे। इसका मतलब एक मुहद्दिस ने यह बयान किया कि ये बद्दुआ नहीं है, बल्कि उनके हाथ में एक तरह से दुआ ही है, ताकि वो काम जल्दी से फारिग हो जाए। ऐसा क्यों क्या कहा करते, क्यों बुला रहे थे उनको? तो दूसरी रिवायतों के अंदर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ वही नाजिल हुई थी, और इत्तेफाक से उनको इसीलिए बुला रहे थे कि वो उसको नोट कर लें, लेकिन वो ताहाल देर हो रहे थे, तो आपने ऐसे अल्फाज निकल गए। और सही मुस्लिम के अंदर रिवायतों के अंदर एक बात मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के लिए अगर बद्दुआ किया ही, लेकिन वो उसका अहल नहीं है, अल्फाज आपकी जबान से निकले हैं उसका अहल नहीं है, तो वो चीज उसे लगती नहीं थी, ठीक है। लेकिन जो उसका मुस्तहिक है उसे जरूर वो बात लग जाती थी। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआएं की। अब देखिए हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु तवाज़ु और तमस्सुक बिल हदीस के कितने पाबंद थे, तवाज़ु और तमस्सुक बिल हदीस के किस कदर ये पाबंदी करते थे, आप देख सकते हैं इनको। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है खुद कि वो एक मरतबा जब बाहर निकले तो देखा 2 सहाबी अब्दुल्ला बिन जुबैर और इब्न सफ़वान उन्हें देखकर एहतराम में खड़े हो गए, उन्हें देख करके एहतराम में खड़े हो गए। अब जाहिर सी बात है, अब कोई खलीफा हो, अमीरुल मोमिनीन हो, तो उन्हें देख करके लोग खड़े हो जाएंगे नहीं। वक्त का बादशाह हो आपके पास पहुंच जाए, क्या करेंगे लोग? सिरपिटा जाते हैं। 2 सहाबी जो खड़े हो गए एहतरामन, तो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तुम दोनों बैठ जाओ। मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो आदमी ये चाहता हो कि उसकी ताजीम में दूसरे लोग खड़े हों, फल यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, तो उसे चाहिए कि अपना ठिकाना वो जहन्नम में बना ले। अल्लाह, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान की किस तरह पासदारी है, इससे यहाँ जिम्मेदारान के लिए और इसी तरीके से ओहदेदारों के लिए इस हदीस में नसीहत यह है कि कोई भी ओहदा उसे मिले, अगर सामने वाला आपके एहतराम में खड़ा नहीं होता है, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, और ना ही एक इंसान को इसकी तमा और ख्वाहिश करनी चाहिए कि मेरे एहतराम में लोग खड़े हों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कि बयान किया, इसी तरीके से आप रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत में ये चीज है कि सहाबा इकराम भी आपके सहाबा इकराम की नजरों में, सहाबा इकराम की नजरों में आपके बहुत सारे मनाकिब ताबईन ने बयान फरमाए हैं। लेकिन वक्त चूंकि खुतबा जुमा का वक्त निकलता चला जा रहा है, सिर्फ मैं एक बात या 2 बात बता करके अपनी बात को खत्म करता हूं कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु वो सहाबी रसूल हैं कि खलीफतुल सानी हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपको उस वक्त का गवर्नर मुतय्यन किया था, नामजद किया था। हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान के एक भाई यजीद थे, यजीद बिन अबी सुफियान, उनके बाद जो है उस इलाके का गवर्नर आप रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया गया था। और इसी तरीके से हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये कहा कि ला तकरहु इमारत मुआविया, के लोगों तुम लोग मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की इमारत को नापसंद न करो, अल्लाह की कसम अगर तुम उन्हें गुम पाओ या ये कि तुम उन्हें ना पाओ तो तुम ये जान लो कि तुम देखोगे लोगों की हालतें कैसी और कैसी हो रही होंगी। मालूम यह हुआ कि सहाबा इकराम भी आपका एहतराम करते थे और सहाबा इकराम की नजर में भी आप रज़ियल्लाहु अन्हु पसंदीदा थे। इसी तरीके से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में भी है कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु के एहतराम में आप भी बहुत एहतराम करती थी और आप भी बहुत ज्यादा आपका एहतराम करते थे। इसी तरीके से जो है साहब सलफ़ सालिहीन में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं
कि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे यहाँ एक आजमाइश है। वो यूं कि जो भी उन्हें बुरी निगाह से देखेगा हम उसे मुत्तहम समझेंगे। यानी मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु एक मीज़ान के मानिंद है। अगर उनको लोग बुरा भला कहें या ये कि उनके खिलाफ ज़बान दराजी करें तो हम उसे क्या समझेंगे कि ये मुत्तहम है, ये इंसान के ईमान में या इनके दिल में निफाक है, जब भी ये हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। ये मेरे भाइयों और अजीज तालिबात और मुअल्लिमात, असलाफ की वो सारी बातें जो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के फजाइल और मनाकिब में बयान किए हैं, इस मुख्तसर से वक्त में बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम सिर्फ एक पैगाम ये देकर के जाना चाहते हैं कि माह मुहर्रम का महीना जब जब भी आता है, हर साल गुजरने के बाद जब नया साल शुरू होता है तो हम सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और दीगर सारी जगहों पे हम देखते हैं कि वो सूफियों की तरफ से, शियों की तरफ से या नाम निहाद मुसलमानों की तरफ से आप देखेंगे कि बहुत अजिल्ला सहाबा के बारे में लोग तानो तशनी कर रहे होते हैं। ऐसे में हर मोमिन की जिम्मेदारी बनती है कि सहाबा कराम के फजाइल, उनके मनातिब और उनके दर्जात को बयान किया जाए। और जो लोग उनकी शान में गुस्ताखियां करते हैं, जबान दराजी करते हैं, ऐसे लोगों को ये बात बताया जाए कि अगर आपका रवैया ऐसा रहा तो यकीन जानिए कि आपसे आपका ईमान भी खत्म हो जाएगा। और इस तरीके से आप खुद भी ऐसा कह करके सहाबा कराम को आप अपनी नेकियां बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं कि परवरदिगार आलम तो हम तमाम लोगों को नेक अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह जो लोग भी और जहां कहीं भी सहाबा कराम के शान में लोग गुस्ताखियां कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें नेक हिदायत नसीब फरमा। अल्लाह हम सबको अपने इल्म और ताकत के बकदर दिफा करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह जहां कहीं मुसलमान परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह जो रोजी रोटी के लिए परेशान है, अल्लाह तू उन्हें हलाल रोजी नसीब फरमा। अल्लाह जो बीमार हैं, अल्लाह तू उन्हें शिफाए कामिला व आजिला नसीब फरमा। अल्लाह मुसलमान जिस तरह भी परेशान है, जहाँ के अल्लाह तू अपने फजल व करम से उन पर खास एहसान फरमाते हुए उनकी परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।